Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Uttar Pradesh. My name is Manveer Singh and I'm City Head and Chief Mentor of IMS Pragraj. In last video, I've shared the roadmap and the plan which we are going to use for CAT 26. I also shared the timeline and the content which we'll be uploading in the upcoming days for CAT 26 aspirant. The another thing which I shared was the detail of a batch which we are going to start on 9th of April. That batch is scheduled to start in the evening 5 to 7, and that will be a 5-day class batch where I'll be taking DLR classes along with me. Anubhav sir and Mukul sir would be there for VRC and Pont. In that batch, one of the key feature which I shared was the student portal, which we generally uh, give to the student who enrolled with us, either in the classroom or in the online space. Or if you are someone who enrolls with us in the test series, also gets the portal. What is how does this portal looks like? What is the exact content which we give is in this video, and this video is made to give you a overview. How does the portal usage is done? How do we plan to use the portal, and how the things are given? At which time the things are given to you. So this is how the entire portal looks like. जब आप लॉगिन करते हो तो आपको होम प्रिपेयर टेस्ट माई पेज परफॉर्मेंस बी स्कूल जोन हेल्प डेस्क ये सारे टैब्स हैं जो आपको दिखाई देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द टैब नंबर 1 होम. सो एट होम पेज दिस इज द इंटरफेस यू विल बी गेटिंग. ये आप जब स्क्रीन डाउन करते हो तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे नाउ प्लेइंग आ रहा है चैनल. तो यहाँ पे चैनल ये जो कैट 25 मास्टर क्लास दिखा है यहीं पे आपकी क्लासेस दिखाई देंगी. कुछ इस फॉर्मेट पे दिखाई देंगी. आप देख सकते हो यहाँ पे लाइव क्लास चल रही है एंड दीज आर दी क्लासेस व्हिच हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड. इसी तरीके से आपको आपकी लाइव क्लासेस दिख रही होंगी. जैसे आपका बैच 5 to 7 है तो ये 5 to 7 के लिए ये वॉच लाइव करोगे तो यू कैन स्टार्ट दी क्लास. एंड अपकमिंग क्लासेस में यू कैन सी कि जैसे यहाँ पे क्लासेस दिख रही है 16th मार्च को 18th मार्च को. इन सेम मैनर यू कैन ऑल्सो सी योर अपकमिंग क्लासेस एंड कंप्लीटेड वाले टैब में यू विल ऑल्सो सी योर क्लासेस विच हैज बीन कंप्लीटेड. तो जैसे ही लेट्स से 5 से 7 की क्लास है 7:01 पे या 7:05 तक यू कैन एक्सपेक्ट कि आपकी सेम क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे आपके पोर्टल पे अवेलेबल रहने वाली है. ठीक है. जब आप और स्क्रॉल डाउन करते हो यू विल गेट द ब्लॉग्स. सो दिस इज द बुक व्हिच इज रिटन बाय टोनी ज़ेवियर सर. Tony sir happens to be uh, alumni of IIM Lucknow, and he takes care for the entire mentorship thing. And he has written the blog. इसके अलावा you'll also find a form filling guidelines by Prashad sir, CMAT का form, MyCat का form, IFT का form filling, and also about the one-to-one mentorship sessions. ठीक है. So these are just the just to show you कि क्या क्या ये मिलता है. Let's start with the main part which we जनरली यूज. तो पहला पार्ट तो ये है जहाँ पे आप क्लास देख पाओगे. यहाँ पे आपको क्लास दिखाई देंगी. जैसे ये कैट 25 मास्टर क्लास लिखा हुआ है कंप्लीटेड और अपकमिंग में. इसी तरीके से जैसे देखो यहाँ पे सेम मैनर में यू विल आल्सो सी योर क्लासेस ओवर हियर. कैट 25 मास्टर क्लास की जगह पे आपका बैच कोड यहाँ पे लिखा रहेगा एंड यू कैन सी कंप्लीटेड और अपकमिंग में. ठीक है. So first tab was this home page जहाँ पे you will find the this notice board also. Notice board पे you will see the all the updates. जैसे यहाँ पे देखो ये update पे click करोगे तो एस डी भगवानी का फॉर्म की लास्ट डेट आ गई है. इवेंट्स जो भी IMS इवेंट कंडक्ट कर रहा है उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको दिखाई देंगी. ऑल्सो यू विल फाइंड द पोस्टर्स ऑफ ऑल द फ्लैगशिप फीचर विच वी हैव एडेड ऑन द पोर्टल. जैसे बी स्कूल जोन इज देयर. ठीक है. एस डी भगवानी का फॉर्म फिलिंग का है. 50-day स्ट्रैटेजी फॉर MHCET. ठीक है. आप जब आगे इस तरीके से इसको करोगे तो विल फाइंड ऑल दी थिंग. IMS प्रोफाइल एंकर. आई ब्रीफ यू अबाउट एवरीथिंग in the coming this thing. So let's start with our first step, prepare. जब आप prepare करते हो तो you'll find 6 tab over here. Guide, module, ADMAT practice session, master class, GK, ZAT practice. क्या है ये सब? Let's take one to one. गाइड पे जब आप क्लिक करते हो तो you'll find CAT और ADMAT. CAT में जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अबाउट द CAT, टेस्ट प्रेप स्ट्रेटेजी, टॉप प्रोफाइल, इन सब का हमने यहाँ पे छोटा-छोटा आपको ये देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो you'll find ये देखो स्मॉल वीडियोस जस्ट टू एक्सप्लेन. ठीक है. concept of percentage. So If at these any are point in small time you videos have which are started made to preparing- explain you कि भाई CAT का exactly paper कैसा होता है, how do the things work. ठीक है. इसी तरीके से you will find the details for the ADMAT also. जैसे ADMAT में देखोगे तो ADMAT का भी सेम चीज आपको अवेलेबल है एंड all these things are available in the video format. तो जब भी आपके पास टाइम हो
जब आप बिकॉज़ एज़ अ बिगिनर यू नीड टू नो अबाउट एवरीथिंग कि ज़ैट एग्ज़ैक्टली होता कैसे है, हाउ टू क्रैक, स्नैप कैसा होता है, एनमैट कैसा होता है। इन सारी डिटेल्स के लिए आपको ये ब्लॉग वाला पार्ट यूज़ करना है, गाइड वाला पार्ट, ठीक है? मॉड्यूल्स पे चलते हैं, तो हमने क्या करा हुआ है, हमारा जो पूरा कोर्सवेयर है, वी हैव सेग्रीगेटेड इट इनटू 5 मॉड्यूल्स. सो मॉड्यूल 0, 1, 2, 3, 4, 5. Now let's start with module 0. Module 0 is a pre-class module, pre-module which is basically helping you to develop your basic understanding on quants, DLR and verbal ability. तो यहाँ पे क्या होगा, आपको fun with QA, basics of calculation. All these things are also there in the form of hard copy. जो आपको बुक्स मिलेगी वो उधर भी अवेलेबल है और डिजिटल स्पेस पे भी अवेलेबल है. ठीक है? आपको ये वो फन विद क्यूए क्लास एक्सरसाइज है एंड सबके वीडियो सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे. सो व्हेन वी स्टार्ट विद द मॉड्यूल 1, तो आप यहाँ पे मॉड्यूल 1 पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा सारा आपका ये टॉपिक टॉपिक वाइज आएगा. क्वांट, डीएलआर प्रैक्टिस, वीआरसी प्रैक्टिस. क्या है, एक-एक टैब विजिट करते हैं. क्वांट क्वांट में जाओगे तो ये देखो सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी एंड फैक्टर्स, एचसीएफ, एलसीएम. ये सारे टॉपिक आपके मॉड्यूल नंबर 1 पे भी होंगे, जो आपको हार्ड कॉपी आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पे डिलीवर होगी, उस पे भी है एंड अलोंग विद दैट यहाँ पे भी है. अब यहाँ पे एग्जैक्टली है क्या, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ परसेंटेज. तो परसेंटेज पे क्या होने वाला है, प्री क्लास वीडियो, क्लास एक्सरसाइज, प्री क्लास क्विज, क्लास एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, बेंचमार्क टेस्ट. इतना कंटेंट आपको मिलने वाला है ऑन दिस पोर्टल. मैं एक-एक करके लेके चलता हूँ. सो अवर पेडागॉजी जहाँ पे वी स्टार्ट विद द प्रिलिमिनरी पार्ट. जैसे मैंने अगर आपको परसेंटेज पढ़ाना शुरू करना है, तो आई विल बी स्टार्टिंग विद वेरी स्क्रैच की 1/2, 1/3, 1/4 क्या होने वाला है, परसेंटेज एग्ज़ैक्टली क्या होने वाला है, सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है. सारे जितने भी आपके बेसिक कांसेप्ट्स हैं ऑन परसेंटेज दैट आई विल बी टीचिंग यू. एंड वन्स आई हैव कंप्लीटेड दैट पार्ट, तो मैं क्या करूँगा, आपको क्लास एक्सरसाइज सॉल्व कराऊँगा, जो कि मैं रेफर करूँगा. दैट सेम क्लास एक्सरसाइज का वीडियो सॉल्यूशन इज़ ऑलरेडी देयर है, ठीक है? क्योंकि उसको मैं क्लास में सॉल्व करा रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप क्लास में सॉल्व करने के बाद उसको रिवाइज़ करो अपने मॉड्यूल से या पोर्टल पे. तो ये मैंने यहाँ पे क्रिएट करा हुआ है. एंड देन वन्स यू हैव कंप्लीटेड योर क्लास एक्सरसाइज, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए. तो दैट पोर्टल है, दैट मॉड्यूल हैज़ प्री क्लास, क्लास एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज. तो प्री क्लास इज़ समथिंग जो कि कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए यूज़ होती है, जो कि हम क्लास में यूज़ करेंगे. क्लास एक्सरसाइज इज़ अगेन समथिंग व्हिच वी विल बी यूजिंग इन द क्लास. एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज इज़ समथिंग जो मैं आपको होमवर्क के फॉर्म पे दूँगा, आपको घर से करके लाने के लिए. ठीक है? नाउ द प्रॉब्लम कम कि सर, क्योंकि आप ऑफलाइन स्पेस में होते हो तो आप डाउट पूछ पाते हो. ऑनलाइन में क्या होता है कि बच्चे कहते हैं कि सर मैं डाउट कैसे पूछूं. तो डाउट पूछने का एक तरीका तो ऑब्वियसली यू विल हैव अ टेलीग्राम ग्रुप एक्सेस, यू विल हैव व्हाट्सएप एक्सेस ऑफ द मेंटर. इसके अलावा व्हाट वी हैव डन, हमने ना जितने भी हमारे ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं, इनके हमने वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट कर लिए हैं. देखो जैसे मैंने ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज ओपन किया, ठीक है? ये तो डिटेल रिव्यू में जाऊंगा तो यू विल फाइंड वीडियो सॉल्यूशन फॉर ऑल द क्वेश्चन. जैसे वो ये टेक्स्ट सॉल्यूशन था, ठीक है? ओके, आई हैव ओपन द बेसिक वाला ना, ये तुम्हारा ये वाला नहीं है, ये तो बेसिक वाला है. इसमें तो टेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये वाला प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो मेन प्रैक्टिस क्वेश्चन है. जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है? नाउ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देखो सॉल्व किया गया है, इसके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएँगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18 पे जाते हैं. लेट्स से इसका आंसर है, आप मान लेते हैं 15 ऐसा, ठीक है? मैंने गलत कर दिया, तो नाउ आई कैन रेफर टू द वीडियो सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो सेम मैनर में आपको सबका दिखाई देगा, ठीक है? बेस्ट पार्ट क्या है, जैसे ही आप क्लास एक्सरसाइज खत्म करोगे और प्रैक्टिस एक्सरसाइज खत्म करोगे, तो आपको रिवाइज विद एआई आ जाएगा. अब रिवाइज विद एआई का लॉजिक क्या है, बेसिकली व्हाट वी हैव सीन इज कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर आई हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक बट फॉर सम रीजन आई डोंट फील कॉन्फिडेंट इनफ कि मेरे को ये टॉपिक प्रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ. तो मेरे को क्या इसी टॉपिक पे ऐसे ही और क्वेश्चन मिल सकते हैं क्या? सो फॉर दैट पर्पस व्हाट वी हैव डन इज रिवाइज विद एआई का फीचर ऐड करा हुआ है, जहाँ पे जब आप रिवाइज विद एआई पे क्लिक करोगे तो एआई आपको सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चन देगा जो कि आपने यहाँ पे प्रैक्टिस किए हुए हैं. देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 2, 3, 9, जैसे ये 9 क्वेश्चन नंबर 9 गलत किया हुआ है इस बच्चे ने. तो वो रिव्यू करने के लिए दे रहा है और आपको वैसे क्वेश्चन और बना के देता जा रहा है एआई. ठीक है? नाउ अगर आप समझो तो हाउ डज़ द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क. प्रिलिमिनरी लर्निंग ऑन दी क्या कहते हैं लाइव क्लासेस, क्लास एक्सरसाइज सॉल्व होंगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको होमवर्क मिल जाएगा जिसको कि आप सॉल्व कर सकते हो रिवाइज विद एआई. एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड द एंटायर थिंग, जब आपको लगा कि यार मैंने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, तो बेंचमार्क टेस्ट. अब बेंचमार्क टेस्ट क्या है, ये टॉपिक वाइज टेस्ट है. आपको हर टॉपिक पे बेंचमार्क टेस्ट दिखाई देगा, ठीक है? ये देखो यहाँ पे बेंचमार्क टेस्ट फॉर रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सारे टॉपिक पे हमने ये क्रिएट करा हुआ है. एंड ऑल दिस क्वेश्चन विल हैव अ वीडियो सॉल्यूशन.
देखो मैं आपको इसके लिए भी दिखा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में गए तो क्वेश्चन नंबर 1 का देखो वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 3 पे गए, क्वेश्चन नंबर 3 का भी वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है? सो बेंचमार्क टेस्ट गिव्स यू अ वैलिडेशन कि भाई तेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है? दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क वर्क इन क्वांट। क्वांट में आप जब एक्सप्लोर करोगे तो आपको हर टॉपिक पे दिखाई देगा। देखो मॉड्यूल 2 में मैं जब जाता हूँ, तो मॉड्यूल 2 में मैं लेट्स से मैं चला गया पॉलिनोमियल में। ठीक है? तो वो पॉलिनोमियल में अगेन क्लास एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, बेंचमार्क टेस्ट। देखो मैं इंडिसेस में चला गया। इंडिसेस पे भी क्या है? क्लास एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, बेंचमार्क टेस्ट। ठीक है? इसी तरीके से इफ आई गो टू द मॉड्यूल नंबर 4, ठीक है? व्हिच इज़ मेजरली ऑन देखो ये रहा मॉड्यूल नंबर 4 व्हिच इज़ मेजरली फॉर ज्योमेट्री। तो फंक्शन एंड ग्राफ और इनइक्वालिटीज, बेसिक पीएनसी देखो ये वाला। तो अलजेब्रा का ये पार्ट है। तो यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज एंड बेंचमार्क टेस्ट। सो मैथ्स का आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे मैं पोर्टल को यूज़ करवाने वाला हूँ। आई विल बी मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आपको क्या करना है, क्लास अटेंड करनी है, क्लास आपकी बढ़िया से हो गई, आपको फिर उसके बाद क्लास एक्सरसाइज करनी है कंप्लीट जो क्लास में करवाई जा रही है एंड आफ्टर गोइंग बैक यू आर सपोज्ड टू सॉल्व प्रैक्टिस एक्सरसाइज एंड वंस यू फील दैट आई हैव कंप्लीटेड दी ऑल दी दीस थिंग, तो आपको क्या करना है, बेंचमार्क टेस्ट अपीयर करना है। ठीक है? फिर आ जाते हैं कि भाई डीएलआर में कैसे चलने वाला है। डीएलआर में भी सिमिलर चीज चलने वाली है। सो डीएलआर के अंदर वी हैव गिवन टू थिंग्स। ठीक है? डीएलआर में विल हैव अ प्री क्लास, क्लास एक्सरसाइज, बेंचमार्क टेस्ट। क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं तो हमने क्या करा हुआ है, डीएलआर का प्रैक्टिस सेट्स भी क्रिएट करा हुआ है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली दिस इज, प्रैक्टिस सेट्स में यू विल फाइंड 50 सेट्स जो कि इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट टोन पे बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखो मॉड्यूल 1 इज कैलकुलेशन, डीआई एंड अरेंजमेंट। तो देखो हमारा यहाँ पे ये 50 सेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं ऑन ऑल दीस थिंग्स एंड हर सेट का वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे लेट्स से ये क्वेश्चन उठाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन भी है और टेक्स्ट सॉल्यूशन भी यहाँ पे अवेलेबल है। सो आपको जितने भी प्रैक्टिस वाला पार्ट है, सबका वीडियो सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी क्रिएट करके अपलोड करा हुआ है ताकि आपके लिए वो दिक्कत ना है। व्हेनेवर यू आर प्रैक्टिसिंग यू देयर इज अ वर्चुअल मेंटर अवेलेबल विथ यू इन द फॉर्म ऑफ वीडियो सॉल्यूशन। वो आपको मदद करने के लिए हमेशा वहाँ पे अवेलेबल है। तो आपके लिए वो एक ईज़ी वे आउट बन जाता है चीज़ों को इमीडिएट डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है? सेम चीज़ हमने वीआरसी के लिए भी रेप्लिकेट करी बिकॉज़ डीएलआर एंड वीआरसी इज़ समथिंग जहाँ पे बच्चा कहता है कि सर मेरे को रोज़ का 2 सेट 2 आरसी चाहिए। तो हमने क्या करा हुआ है, 50 डीएलआर के सेट एंड 50 आरसी के पैसेजेस क्रिएट करे हुए हैं। तो वो आरसी के लिए भी वैसा ही होने वाला है। यू विल हैव प्री क्लास, क्लास एक्सरसाइज, बेंचमार्क टेस्ट एंड इसके अलावा प्रैक्टिस सेट्स के लिए आरसी का देखो प्रैक्टिस सेट देखो 50 सेट है एंड इसके भी वीडियो सॉल्यूशन होने वाले हैं। देखो आरसी प्रैक्टिस पे क्लिक करूँगा तो डिटेल रिव्यू पे चले गए। ये देखो वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। सो दिस वीडियो सॉल्यूशन विल एक्जेक्टली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड आंसरिंग ऑप्शन ए और बी और सी जो भी आपका ऑप्शन है। तो ये स्ट्रैटेजी वाला पार्ट भी आप समझ पाते हो। ठीक है? सो दिस इज़ हाउ द एंटायर मॉड्यूल पार्ट लुक्स लाइक जो मैंने प्रिपेयर पे मॉड्यूल पे क्लिक किया था। एडमेट प्रैक्टिस पे जाओगे तो सेम चीज़ आपको एडमेट प्रैक्टिस पे मिलेगा। इनमें क्या मिलने वाला है, प्राइमरीली यू विल बी फाइंडिंग दोज़ टॉपिक जो कि कैट के अंदर कवर नहीं होते। जैसे देखो मॉड्यूल 1 पे या मॉड्यूल 2 पे क्लिक करूँगा, तो मॉड्यूल 2 में क्वांट्स के वो टॉपिक जो कैट के अंदर आपको उस लेवल पे नहीं दिखते, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये ईज़ी सेट ऑफ क्वेश्चन टू हेल्प यू इन मैक्सिमाइजिंग इन दिस एडमैट, क्योंकि एडमैट में क्या होता है ना, स्नैप और एडमैट में जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी वो थोड़ी ईज़ियर हो जाती है बट यू हैव टू सॉल्व वेरी क्विकली। सो उसके लिए उस टाइप के क्वेश्चन आपको बना के दिए गए हैं। ठीक है? तो आपके लिए पोर्टल पे कैट और एडमैट दोनों को फोकस करके ये पूरा कंटेंट तैयार किया है। इट इज़ नॉट ओनली फॉर द कैट, इट इज़ आल्सो फॉर एडमैट आल्सो। ठीक है? देन कम्स योर फोर्थ टैब व्हिच इज़ मास्टर क्लास। सो मास्टर क्लास के बारे में मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, मास्टर क्लास इज़ बेसिकली पीवाईक्यू एंड रिवीजन सेशन जिसमें कि कैट के अलग हैं। देखो कैट का पूरा ये 16 और 20 सेशंस हैं। क्वांट के 12 सेशन, डीएलआर के 4 सेशन, वर्बल के 4 सेशन। ऐसे ही एडमैट पे जाओगे तो एडमैट के अलग सेशंस आपको मिल जाएँगे। ज़ैट के भी सेशन हमने अपलोड करे हुए, डिसीजन मेकिंग के 3, क्वांट्स के, डीआई के, क्योंकि जो 2 और यहाँ पे वीआरसी का 1, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ज़ैट की वीआरसी इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट कम्स इन कैट बट इसमें क्या है, पोएम एक पार्ट है जो कि ऐड हो जाता है। तो इसका एक सेशन हमने यहाँ पे पूरा प्लान किया हुआ है। ठीक है? दिस इज़ अ पोर्टल ऑफ अ स्टूडेंट जो कैट 25 में एनरोल्ड था, तो उसके पोर्टल को मैं यूज़ करके आपको बता रहा हूँ। दिस इज़ हाउ द थिंग्स वुड बी देयर फॉर यू आल्सो। ठीक है? तो आपको कैट 26 में अब अपडेटेड न्यू कंटेंट ऐसा मिल रहा होगा।
We also give content for PGDBA. This is basically a business analytics program offered by IIM Kolkata, ISI Kolkata एंड IIT खड़गपुर, ये तीनों मिलके अपना एक पेपर कराते हैं। इसका भी कंटेंट हमने मास्टर क्लास के फॉर्म पे बना के अपलोड किया हुआ है, ठीक है? एंड सेम मैनर में यू विल आल्सो गेट इन द कमिंग डेज़। तो ये वाला पार्ट आपको सितंबर के बाद मिलता है, ठीक है? जैसा मैंने टाइमलाइन वाइज़ वीडियो में बताया था, इनिशियली यू वोंट बी गेटिंग द एक्सेस। यू कैन सी द टैब ओवर योर पोर्टल। जब आप एनरोल करोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, बट एक्सेस आपको सितंबर में मिलेगा। बिकॉज़ होता क्या है कि जब हम आपको पहले एक्सेस दे देते हैं तो आप बहुत ज़्यादा टाइम इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हो, जो कि टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है? सो ये पार्ट आपका आ गया। फिर जीके पे चले जाएँगे तो जीके ज़ोन इज़ देयर, जो कि करंट अफेयर्स और एग्ज़ाम वाइज़ जीके है। जैसे कि सीमैट एंड ज़ैट, ये 2 पेपर हैं जहाँ पे आपका जीके आती है। तो एग्ज़ाम वाइज़ जीके के लिए भी प्रिपेयर करने के लिए ये देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे। सो देखो ज़ैट का पूरा ये कंपेडियम है, ठीक है? ऑल्सो विल हैव इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, देखो मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ बिकॉज़ ये एक कंसर्न रहता है बहुत सारे बच्चों का। ये देखो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के प्रॉपर आपके पास सेशंस रहते हैं अलोंग विद द टेस्ट। तो ये चीज़ आपको हेल्प करती है चीज़ों को कवर करने के लिए, ठीक है? सो दिस इज़ हाउ द एंटायर प्रेप टैब लुक्स लाइक एंड लेट्स मूव टू द टेस्ट टैब। टेस्ट में देखोगे आपको 3 टैब दिखाई देंगे कैट। सो कैट के अंदर क्या है, मॉड्यूल टेस्ट। सो मॉड्यूल 1 का टेस्ट, मॉड्यूल 2 का टेस्ट, मॉड्यूल 3, 4 ऐसा। फिर प्रॉक्टर टेस्ट, सिमकैट टेस्ट, वीएआरसी, डीएलआर, क्वांट्स, ये तीनों के 10 सेक्शनल टेस्ट हैं। एंड लास्ट पास्ट एक्चुअल कैट पेपर्स, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द पेपर proctored. So you'll get 20 proctored mock and 20 take home mocks. Proctored क्या होते हैं, टेक होम क्या होते हैं, प्री क्या होते हैं? सो प्री इज ईजियर वर्जन ऑफ फुल लेंथ मॉक, ठीक है? जो कि हम अप्रैल में शुरू कर देते हैं। बिकॉज होता क्या है कि अप्रैल में बहुत सारे बच्चे को यूज टू नहीं होता कैट का मॉक लिखने का, तो उनको जस्ट टू गिव देम एन आइडिया वी जनरली स्टार्ट विद द प्री सिम कैट्स, जहाँ पे यू गेट अ ईजियर वर्जन ऑफ पेपर एंड यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, चीजों को कैसे लेके जाया जाए, ठीक है? वंस यू कंप्लीट दैट प्री क्लास, आपके पास फिर सिमकैट, प्री सिमकैट के बाद आपका सिमकैट 1 शुरू होता है। नाउ सिमकैट 1 इज़ बेसिकली अ प्रॉक्टर्ड। प्रॉक्टर्ड के अंदर अगर आप लिखते हो तो यू विल बी गेटिंग परसेंटाइल एज़ वेल एज़ रैंक। और अगर आप टेक होम में लिखते हो, मतलब जो टेक होम एज़ इन वो 3 दिन की विंडो में नहीं लिखते हो, तो आपको रैंक नहीं मिलेगी। जैसे इस स्टूडेंट का मैंने लॉगिन किया, देखो यहाँ पे व्यू माय एनालिटिक्स, ये बच्चे ने जो अपना सिमकैट 1 है, वो इसमें नहीं लिखा हुआ है। प्रॉक्टर्ड वो मोड में नहीं लिखा, देखो इसको रैंक नहीं मिली हुई है। अगर इसने प्रॉक्टर्ड मोड में लिखा होता तो इसको रैंक मिलती। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अ, देखो इसमें सिमकैट 19 अपना प्रॉक्टर्ड विंडो में लिखा तो इसको रैंक मिली हुई है, ठीक है? सिमकैट 1 इज़ समथिंग जो कि इसने प्रॉक्टर्ड मोड में नहीं लिखा था तो इसको रैंक वहाँ पे नहीं मिली है, ठीक है? नाउ हाउ डू दिस लुक लाइक, मैं आपको एक पेपर का दिखाता हूँ। जैसे वन्स यू आर डन विद द पेपर तो आपको ये एनालिटिक्स टैब आता है और रिव्यू टेस्ट आता है। एनालिटिक्स में क्या दिखता है, आपने ओवरऑल कैसा परफॉर्म करा, आपका वर्बल में कैसा परसेंटाइल था, डीएलआर में कितना था, क्वांट में कितना था, ठीक है? और कट ऑफ स्कोर वर्सेस परसेंटाइल कितना गया है इस पर्टिकुलर पेपर के लिए। एरिया वाइज कट ऑफ भी देख सकते हो कि एरिया वाइज आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। वर्बल के अंदर देवर टोटल 22 क्वेश्चन, जिसमें से आपने 7 अटेम्प्ट किए, आपके 7 मार्क्स आए हैं। 24 क्वेश्चन में से आपने 9 अटेम्प्ट किए, 1 वर्बल का किया और 8 आरसी के किए। ऐसे ही डीएलआर का आप देख सकते हो। डीआईएलआर के अंदर 12 क्वेश्चन थे, 12 मार्क्स थे। 22 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चंस वर ऑन डीआई एंड 9 क्वेश्चन वर ऑन एलआर, ठीक है? एंड दिस इज हाउ द थिंग्स लुक लाइक, ठीक है? अब ये तो एनालिटिक्स वाला पार्ट है। फिर आपका रिव्यू वाला पार्ट आता है। तो रिव्यू में जब आप जाते हो तो रिव्यू में क्या मिलता है? सो ये देखो, ये आपका टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया और यहाँ पे आपका डैश रिव्यू योर आंसर्स का टैब आता है। सो यहाँ पे क्या है, वीआरसी, डीआईएलआर और क्वांट स्कोर कार्ड आपका यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, ठीक है? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे जब आप जाओगे तो यहाँ पे क्वेश्चन टाइप ए दिखेगा। तो ए, बी, सी 3 हमारे क्वेश्चन टाइप होते हैं। ए, बी, सी इज़ बेसिकली अ, क्योंकि आप नए हो एबीसी कांसेप्ट को लेके, तो जस्ट टू गिव यू अ बेसिक आइडिया, ए हैपेंस टू बी ईजियर क्वेश्चन, बी हैपेंस टू बी मॉडरेट एंड सी हैपेंस टू बी डिफिकल्ट। अभी करना है, बाद में करना है, छोड़ देना है, ठीक है? सो हाउ डू वी डिटरमाइन कि ये ए कैटेगरी का क्वेश्चन? देखो ये डेटा दिखाता है। डेटा कैसा दिखाता है कि ये वाला क्वेश्चन ये बच्चे ने स्किप कर दिया था और 14 सेकंड में स्किप किया था, ठीक है? पर ओवरऑल टॉपर्स में से अगर हम बात करें तो 91.33% ऑफ द टॉपर्स अटेंडेड दिस क्वेश्चन, जिसमें से 89% ने सही किया था। और ऑन एन एवरेज उन्होंने 2 मिनट का टाइम लिया, 2.5 मिनट का टाइम लिया था टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
एंड पी वैल्यू इज 81.33। तो पी वैल्यू जितना 100 के पास होगी उतना ये क्वेश्चन इजी माना जाएगा, जितना वो 50 से कम होगी उतना वो टफ, जितना वो 0 के पास होगी उतना वो सुपर टफ माना जाएगा। एंड फॉर ओवरऑल टेकर्स यहाँ पे बात करें तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पेपर जो टेस्ट टेकर्स थे इस पर्टिकुलर पेपर के, उन्होंने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया एंड 2/3 ऑफ देम मेड दिस करेक्ट आंसर, मार्क्ड आंसर्स करेक्ट। और उनका एवरेज टाइम कितना है, 2 मिनट 42 सेकंड, 2 मिनट 42 सेकंड एंड पी वैल्यू वाज 53.2। ठीक है, सो दिस इज हाउ द एनालिटिक्स वर्क। तो अभी मेरे को क्या दिख रहा है, मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिसका मान लो इंग्लिश ओकेइश है, ठीक है, बट मेरे को ये वाला क्वेश्चन करना चाहिए था बिकॉज ज्यादातर लोग इसको कर रहे हैं और सही कर रहे हैं, डेटा ये दिखा रहा है। ठीक है, और ये डेटा 10,000 प्लस के बेस पे होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि ये 100-200 के बेस पे दिया हुआ है, ये 10,000 प्लस के बेस पे होता है। तो यू गेट टू नो कि अच्छा ये एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ठीक, नाउ दिस पर्टिकुलर टैब ऑल्सो हैज, मतलब ये जो नीचे होगा स्टैट्स के अलावा टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन में मेंटर रहेंगे जो कि आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली दी पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज। सेम चीज आपको डीएलआर में भी दिखाई देगी, सेम चीज आपको क्वांट में भी दिखाई देगी। जैसे डीएलआर में जाते हैं तो डीएलआर में जैसे ये क्वेश्चन था, तो नाउ दिस वाज अ बी कैटेगरी क्वेश्चन, यानी कि ये मॉडरेट होगा। मॉडरेट के लिए देखो पी वैल्यू यहाँ पे दिख रही 55 है टॉपर्स की, ओवरऑल टेकर्स की 33.33 है, 319 है। ठीक है, attempt 92% of the topper attended and out of those 92% 60% got this answer correct। ठीक है, whereas ओवरऑल टेकर में से 78% अटेंडेड एंड 42% गॉट दिस करेक्ट। ठीक है, तो ये डेटा भी आपको मदद करता है चीजों को समझने के लिए। आप जब क्वांट में जाते हो तो क्वांट में यू विल हैव दिस क्वेश्चन, जैसे ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 नंबर्स का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5, ऐसा कहीं पे भी आप रैंडम से, इस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 10 किया हो देखो। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि ये ए कैटेगरी क्वेश्चन था। अगेन देखो डेटा यहाँ पे आपको दिखाई रहा है और इसका भी वीडियो सॉल्यूशन आपके पास होने वाला है। ठीक है, नाउ कम्स कि ये रिवाइज विद एआई क्या चीज है, क्योंकि हमने मैथ्स के अंदर डेवलप करा हुआ है, बिकॉज मैथ्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैथ्स में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे आके कहते हैं सर पेपर के टाइम पे यार ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे से फंस गया, मैंने कई बार ट्राई किया हुआ है, सो कैन आई गेट अ कपल ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट व्हिच कैन हेल्प मी टू इंप्रूव और रिवाइज द कंसेप्ट। उसके लिए रिवाइज विद एआई का टैब यूज करना है। देखो ये क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 4 डिजिट नंबर हैविंग एग्जैक्टली 12 डिस्टिंक्ट फैक्टर, है ना। देखो रिवाइज विद एआई पे क्लिक करूंगा, एकदम सिमिलर क्वेश्चन खुल जाएगा। देखो पी इज अ फैक्टर इन व्हिच हैज अ ये करके दिया हुआ और आपसे आपको कुछ आंसर मार्क करना है। मान लो मैंने आंसर मार्क करा 45, ठीक है, रैंडम सबमिट करा। अब इसने बताया कि नहीं भाई तुमने ये गलत करा हुआ है, तुमको ये फिर से कंसेप्ट अपना जाके रिवाइज करना चाहिए। सो एआई बेसिकली हेल्प्स यू टू improve your understanding in more better manner। ठीक है, सही है। तो ये इस तरीके से ये पूरा पोर्टल हमारा जो सिमकैट का है, ये पूरा इस तरीके से रिव्यू के लिए आपके लिए खुलता है। ठीक है, सेम कैन बी यूज फॉर टेक होम ऑल्सो। टेक होम और प्रॉक्टर्ड में लेवल ऑफ डिफिकल्टी का फर्क नहीं होता है, इट्स जस्ट दैट टेक होम में यू विल नॉट गेट रैंक, प्रॉक्टर्ड में रैंक आती है, टेक होम में ओनली परसेंटाइल इज देयर। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट होता है तो इनिशियली वी ऑफर 10 सेक्शनल एंड देन इन द मंथ ऑफ सितंबर, और मतलब सितंबर एंड में हम 10 और बढ़ा देते हैं, बट इनिशियली वी कमिट कि हम 10 देने वाले हैं। ऐसा ही आप हमारे पोर्टल पे भी देखोगे जहाँ पे आपको 30 सेक्शनल दिखाई देंगे। एंड पास्ट कैट एक्चुअल पेपर्स भी हम यहाँ पे आपको देंगे। देखो आपका पास्ट कैट एक्चुअल में 24 से लेके पूरे 25 तक आपको दिखाई देंगे, सॉरी 19 तक। ठीक है, दिस ईयर यू 25 वाले भी स्लॉट ऐड हो जाएंगे 3, व्हिच यू कैन गिव इन द सेम टेम्पलेट, जैसे आप प्रॉक्टर्ड मॉक में पूरा उसको वो दे सकते हो। ठीक है, दिस इज फॉर कैट। अब एडमेट में भी आपको ऐसा दिखा, देखो एडमेट में हम ये सारे मॉक्स आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, पीजीडीबीए, सीईटी, सीमैट, माइकैट, सीयूटी पीजी, एनमैट, स्नैप, मैट, आईबी सेट, एटमा, एनएमआईएमएस का स्टेज 2 का कॉम्पिटेंसी टेस्ट। ठीक है, और सबके 10-10 मॉक आपको मिलने वाले हैं। देखो सीमैट पे मैंने क्लिक करा, सीमैट के देखो 10 मॉक आपको, इनफैक्ट सीमैट पे हमने पीवाईक्यू भी ऐड करा। देखो 15 मॉक थे और हमने 25 से लेके 23 तक के सारे स्लॉट्स भी ऐड करे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, अगेन यू विल आल्सो हैव वीडियो सॉल्यूशन फॉर ऑल द क्वेश्चंस ओवर हियर। ठीक, ऐसे टेस्ट पे क्लिक करोगे, यू विल आल्सो फाइंड ज़ैट के मॉक पेपर। ज़ैट के देखो डिसीजन मेकिंग के अलग, फुल लेंथ के अलग और प्रीवियस ईयर के अलग। सो देखो यहाँ पे आपका 8 आपको अवेलेबल रहेंगे फुल लेंथ, डिसीजन मेकिंग पे देखो आपके 3 यहाँ रहेंगे एंड पास्ट पेपर्स भी हमने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं 20 तक के। एंड ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल इन अ सिमिलर फॉर्मेट, जैसा कि अभी आपको मैंने सिमकैट में दिखाया था। तो आपके सबके वीडियो सॉल्यूशन रहेंगे जो आपको मदद कर रहे होंगे टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ द थिंग्स लुक। ठीक है,
अब जैसे मान लो मेरे को ये वाला पार्ट करना बाकी है, तो मैं इसको टास्क में ऐड कर सकता हूँ, ऐड टू माय टास्क, ठीक है? इसको मैं इधर आता हूँ, मॉड्यूल में आता हूँ, ठीक है? अब देखो मैंने आरसी प्रैक्टिस 1 ये कर दिया कि मेरे को ये पढ़ना है, रिवाइज़ करना है। अब ये पार्ट जानते हो मेरा कहाँ पे आ जाएगा? माय पेज है, माय पेज पे जाऊँगा तो देखो 3 टैब्स आते हैं, बुकमार्क, माय टास्क, माय प्लान। ठीक है? अभी देखो मैंने क्या करा था, अगर आप पे ध्यान दो तो मैंने माय टास्क में डाला था कि मैं ये 2 काम करने वाला हूँ। तो मैं ये दोनों काम मेरे को पता है किस हफ्ते देना है। जैसे मान लो मैंने वीक अपना शुरू करा एंड आई हैड वर्ड विथ माय मेंटर जहाँ पे आई प्रॉमिस कि मैं इस 1 हफ्ते में आई विल बी राइटिंग 2 मॉक, 2 मॉक मैं लिखने वाला हूँ, 1 सेक्शनल और 1 फुल लेंथ। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना माय टास्क में डाल दूँगा और मेरे को पता है कि भाई वो लिखना ही लिखना है। और बुकमार्क में क्या आएगा, सेम चीज़ आपका बुकमार्क पे भी जा सकता है। जब आप वीडियो देख रहे हो एंड कोई वीडियो आपने बीच में देखते-देखते आपने छूट गई है, तो एट दैट पॉइंट यू कैन बुकमार्क दैट वीडियो, ठीक है? नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट व्हिच इज़ माय प्लान। अब माय प्लान क्या है? बेसिकली वन टू वन डिस्कशन जैसा मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। सो एवरी मंथ यू विल हैव अ वन माय प्लान सेशन विथ योर मेंटर जहाँ पे जब आप जॉइन करते हो तो आपके पहला माय प्लान होगा जहाँ पे मेंटर विल टेल यू अबाउट व्हाट शुड बी योर रोड मैप फॉर नेक्स्ट 30 डेज़ एंड नेक्स्ट 30 डेज़ के बाद दे विल सिट अगेन विथ यू और वो फिर पूछेगी कि बताओ भाई लास्ट 1 महीने में हमने क्या प्लान करा था? उसमें से तुम्हारा क्या-क्या काम हो चुका है और नेक्स्ट 30 डेज़ का प्लान क्या होना चाहिए? ऑल्सो वी डिस्कस कि व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग और व्हाट इज़ गोइंग इन योर फेवर। जैसे आप कह सकते हो 30 डेज़ के बाद कि सर मेरा इंग्लिश बहुत सही जा रहा है बट आई एम स्ट्रगलिंग विथ क्वांट्स। डीएलआर इज़ मॉडरेट। तो क्वांट्स में ऐसा क्या करें कि नेक्स्ट 30 डेज़ में वो मेरा प्रॉब्लम अब ना बचे। ठीक है? सो डिस्कशंस जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको 99% परसेंटाइलर बनाते हैं, वो डिस्कशंस हम माई प्लान पे कवर कर रहे होते हैं एंड क्योंकि ऑनलाइन वाले स्पेस में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमने देखा है कि लोग जनरली शेयर करते हैं कि सर आई एम नॉट एबल टू मीट माय मेंटर और आई एम नॉट एबल टू डिस्कस एनीथिंग विद माय मेंटर। सो उसके लिए व्हाट वी हैव डन कि भाई हमने एक पूरा प्लान कर लिया। हमने कहा नहीं हर महीने में आपको एक माई प्लान करना ज़रूरी है, कंपल्सरी है और एक माई प्लान का जो सेशन है वो कम से कम 1 घंटे का होगा। 45 टू 60 मिनट का कम से कम आपका होने वाला है, जहाँ पे मेंटर विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग टू टॉक विथ यू। ठीक है? अब जब वो माई प्लान के लिए बैठेगा तो वो क्या करेगा आपके परफॉर्मेंस टैब को यूज़ करेगा। परफॉर्मेंस टैब क्या है मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखो परफॉर्मेंस में मैंने जैसे कैट पे क्लिक करा तो स्कोर समरी खुल जाएगी। स्कोर समरी क्या दिखाता है? जितने मैंने मॉक लिखे सबकी परफॉर्मेंस दिखाता है। देखो मैंने ये पहला सिमकैट अब लिखा, फिर मैंने इस तारीख को लिखा, फिर इस डेट को लिखा, फिर इस डेट को लिखा और मेरी परसेंटाइल कैसे जा रही वो दिख रहा है। सो इसके बेसिस पे एज़ अ मेंटर आई एम एबल टू टेल यू कि देख भाई तेरे को ये करना पड़ेगा। या देखो परसेंटाइल प्रेडिक्टर मेरा क्या कहता है मेरी जो बेस्ट परसेंटाइल इस लॉगिन पे थी वो थी 80 परसेंटाइल। मेरा जो ट्रेंड है वो दिखाता है कि मेरा 58 परसेंटाइल तक बन सकता है एंड माय एवरेज परसेंटाइल वाज़ 61 परसेंटाइल। क्वेश्चन सिलेक्शन मैं कैसा करता हूँ? जैसे प्री प्रॉक्टर में, तो मैंने ये देखा कि सिमकैट 1 में मेरे पास ए कैटेगरी के 6 क्वेश्चन थे। मैं 6 अटेम्प्ट किए और 6 सही किए, 2 इनकरेक्ट किए और 19 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैं स्किप कर दूँ। तो मतलब मनवीर एक शायद ऐसा बच्चा है जो कि ईज़ी क्वेश्चन को स्क्रीन ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है? ये देखो यहाँ पे सिमकैट 4 में मनवीर ने ये देखो यहाँ पे 8 क्वेश्चन सही किए, 3 इनकरेक्ट किए और 7 स्किप किए। तो यहाँ पे मनवीर के नंबर थोड़े इम्प्रूव हो गए होंगे, ठीक है? सो ये वाला पार्ट भी आपको दिखाई देगा। ऑल्सो यहाँ पे टॉपिक वाइज़ भी देख सकते हैं। मान लो डीआई का लेके जाते हैं या लेट्स टेक क्वांट का। क्वांट में भी मैंने अर्थमेटिक पकड़ लिया। तो अभी देखो अर्थमेटिक में सिमकैट 1 पे ए कैटेगरी का 1 सही किया था, 4 छोड़ दिया था। सिमकैट 2 में 2 स्किप कर दिए थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी अपने को इतने माइक्रो लेवल पे जाके आपके साथ मेंटर डिस्कस कर रहा होगा। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन नॉट टॉक इन वेग ऐसा हवा में कुछ नहीं बात कर सकते ना, तो इसके लिए हम ये पोर्टल का यूज़ कर रहे होंगे और ये परफॉर्मेंस का टैब आपका यूज़ कर रहे होंगे। सी इफ यू आर एमिंग एट 99 प्लस परसेंटाइल तो यू हैव टू बी वेरी सीरियस ऑन दिस थिंग, ठीक है? आपको सीरियस प्रेप करना पड़ेगा, सीरियसली डेटा के साथ बैठ के चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वी कैन नॉट से कि तेरा इंग्लिश ऐसे सही हो जाएगा, तेरा क्वांट ऐसे सही हो जाएगा, ठीक है? ऑल दीज़ टॉक्स आर वेग। आपको अगर कुछ सब्सटैंशियल ग्रोथ देखनी है तो वो नंबर्स के साथ ही इम्प्रूव होगी और नंबर्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये डेटा आपकी जर्नी को दिखाता है कि जर्नी एग्ज़ैक्टली कैसे चल रही है। ठीक है? सो प्रोग्रेस ट्रैकर पे जाऊँगा तो देखो यहाँ पे मेरी प्रोग्रेस दिखाई देगी कि मैं कैसा परफ़ॉर्म करते हुए जा रहा हूँ। सो ऑल दीज़ थिंग्स वुड बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ माय प्लान। ठीक है? नाउ कम्स बी स्कूल ज़ोन। हालाँकि ये परफ़ॉर्मेंस वाला पार्ट आप खुद भी देख सकते हैं। दिस इज़ आल्सो फॉर एडमैट एंड ज़ैड जैसे मैंने कैट में दिखाया ऐसे ही एडमैट पे भी दिखा सकता हूँ। देखो मैं जैसे
सीमैट का पेपर मैंने जब लिखा तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि हाउ डू माय परफॉर्मेंस लुक लाइक, ठीक है? फिर आ जाता है बी स्कूल ज़ोन। नाउ एक्ज़ैक्टली बी स्कूल ज़ोन क्या है? हमने एक डेडिकेटेड ज़ोन बना दिया जहाँ पे वी हैव पोस्टेड ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द बी स्कूल्स, ठीक है? तो यहाँ पे ये बी स्कूल ज़ोन खुल रहा है। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर यूज्ड बाय द स्टूडेंट। देखो यहाँ पे क्या है, अब जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर मेरे को बी स्कूल के बारे में जानना है। तो व्हाट दे डू इज़ दे जनरली गो एंड डू चैट जीपीटी, व्हिच इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है? तो हमने क्या करा हुआ है, हमने बोला ठीक है एक काम करो तो ये करना शुरू करो। यहाँ पे तो देखो एफएमएस की इन्फॉर्मेशन है, तो तुमको एफएमएस की पूरी प्लेसमेंट रिपोर्ट, सिलेक्शन क्राइटेरिया, लास्ट ईयर का कट ऑफ सब मिल जाएगा, ठीक है? तुमने कहा नहीं सर मेरे को किसी बेबी आई एम का दिखाओ, ठीक है? लेट्स से आई एम सिरमौर देखना है, तो मैं क्या करूँगा आई एम सिरमौर यहाँ पे डाल दूँगा। आई एम सिरमौर के बारे में मेरे को जानना है। आई एम सिरमौर का एमबीए मैंने खोला, ये देखो मेरे को सारी डिटेल्स यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया, कट ऑफ ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख गई। एंड ऑल दिस डेटा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम देयर वेबसाइट। ऐसा कुछ हवा में डेटा नहीं लिया गया है। सो ये एक इम्पोर्टेंट आपके लिए, और कट ऑफ वाला टैब में भी जाके आप देख सकते हो, कॉल प्रिडिक्टर देख सकते हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है? फिर आ जाते हैं अपने पास लास्ट टैब व्हिच इज़ सॉरी हेल्प डेस्क। अब हेल्प डेस्क पे क्या है, इट इज़ बेसिकली लीस्ट यूज्ड टैब और हम नहीं चाहते कि आप उसको यूज़ करो। इट्स लाइक अभी कभी आपको पोर्टल पे ग्लिच एक्सपीरियंस करो तो आप हेल्प डेस्क पे कर सकते हो। ठीक है? नाउ अनदर फीचर व्हिच वी हैव एडेड इज़ प्रोफाइल रैंकर का। देखो ये जैसे मैंने यहाँ पे बताया। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द की थिंग व्हिच वी जनरली व्हिच वी हैव स्टार्टेड यूजिंग। देखो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यू विल फाइंड अनदर पेज आईएमएस प्रोफाइल रैंकर। हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू यूज़ दिस, गेट स्टार्टेड। यहाँ पे अपना आप नाम डालो, लेट्स से मनवीर सिंह, ठीक है? जेंडर मेल, चूज़ योर कैटेगरी जनरल। डू यू आइडेंटिफाई? नहीं। नेक्स्ट। अब मैं अपनी प्रोफाइल भर रहा हूँ, ठीक है? माय प्रोफाइल इज़ 88%, माय 12th इज़ 87%, ठीक है? माय ग्रेजुएशन इज़ कॉमर्स, ठीक है? माय ग्रेजुएशन परसेंटेज वाज़ 72%, माय ग्रेजुएशन स्ट्रीम इज़ नॉन इंजीनियरिंग, नॉन साइंस। नेक्स्ट। क्या मैंने कुछ क्वालिफाई कर रखा है? नहीं। हैव यू कंप्लीटेड योर सीएफए? नन। डू यू हैव अ वर्क एक्स? मान लो मैंने दे दिया 12 महीने का। गेट प्रोफाइल रैंक। अब ये प्रोफाइल रैंक आपकी क्रिएट करके देगा। नाउ प्रोफाइल रैंक सेज कि मनवीर का जो आउट ऑफ 1000 स्कोर कितना है? 644 है। इसके साथ-साथ जो बेस्ट पार्ट है, ये पता चलता है कि मनवीर हैज़ अ हाई चांसेस फॉर 13 कॉलेजेस। वो कॉलेजेस कौन से हैं? वो ये वाले कॉलेजेस हैं। एंड हाउ डिड वी कंक्लूडेड ऑन दीज़ डेटा? हमने क्या करा हुआ है, लास्ट 3 साल का डेटा एआई मतलब अपना ये जो प्रोफाइल रैंकर का डेटाबेस है, यहाँ पे हमने फिच इन करना शुरू कर दिया। जहाँ पे लेट्स से आप इस साल के बच्चे हो जिसकी ऐसी प्रोफाइल थी एंड गॉट इनटू आईएम उदयपुर, तो वो बंदा वहाँ पे चला जाएगा। देखो यहाँ पे दिखाई देगा। देयर वर 4 स्टूडेंट जिनका नाम नहीं पता बट हैड अ सिमिलर प्रोफाइल जैसे मेरी है, 10th वाली, 12th वाली, ग्रेजुएशन वाली, एंड हैड अ वर्क एक्स ऑफ 19 मंथ्स, गॉट एट गॉट एडमिशन एट आईएम उदयपुर एट 93.46 परसेंटाइल। ठीक? एक और बंदा था जिसकी ऐसा प्रोफाइल थी, गॉट कैट परसेंटाइल 98.28 एंड गॉट एट आईएम उदयपुर 97.16 पे। नाउ दिस थिंग विल हेल्प मी टू क्रिएट माय टारगेट कि मेरे को कितना स्कोर करना चाहिए सो एज़ टू गेट इंटो द टॉप बी स्कूल, ठीक है? सो दिस इज़ हाउ द एंटायर आईएमएस पोर्टल लुक्स लाइक। बिकॉज़ है क्या कि व्हेन यू एनरोल तो आपको इसका एक्सेस डे 1 पे मिल जाएगा। सो वी वांटेड यू टू अंडरस्टैंड कि भाई हम तुम्हारी पूरी जर्नी को कैसे लेके जाने वाले हैं। बिकॉज़ अ, ऑनलाइन में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पीपल डू कमिट मैनी थिंग्स कि हम ये भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, बट उनका वो पोर्टल और वैसा कुछ होता ही नहीं है बैक एंड पे। सो वी डोंट वांटेड टू बी दैट इंस्टीट्यूशन। तो मैंने इसके लिए क्या करा, आपको पहले एक ओवरव्यू दे दिया कि देखो भाई तुम्हें ये चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है? चलो, आप ये पोर्टल को यूज़ करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन एनरोल एट ज़ीरो फीस। वो आपका लिंक यहाँ पे है। आप ज़ीरो फीस में एनरोल करोगे तो आपको एक वो मिल जाएगा। ऑल्सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट पिन दिस प्रोफाइल एंकर वाला भी लिंक, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो एंड टू हैव अ आइडिया। ठीक है? चलो, सी यू, बाय।